हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड स्वागत है आप सभी लोगों का आईएफएस की शानदार और बहुत बेहतरीन और लाजवाब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, आप सभी को पता है सीएसआर नेट का रिजल्ट लगा है और उसी के साथ साथ आईएफएस के होनहार एंड मेहनती बच्चों ने इस एग्जाम्स को बहुत ही बखूबी से क्वालिफाई किया है और इसी के साथ साथ आईएफएस की हर साल की लेगेसी को उन्होंने मेंटेन भी करके रखा है। तो आज मेरे साथ कर्नाटका से ऐसे ही एक कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने इस एग्जाम्स में बहुत लाजवाब रैंक हासिल करी है। तो जानते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में और उसी के साथ साथ नए एस्पिरेंट्स के लिए स्ट्रैटेजी और टिप्स भी जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो जानते हैं उनकी कहानी। तो हेलो दोस्त, Hello. थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। Okay, sir. Myself Nagveni Ashok Kalkani, and I studied in Karnataka University, Dharwad, that is Karnataka में है. हम्म। And I completed my masters in the year 2023. हम्म। And after that, currently I am doing B.Ed, हम्म। and अभी नवंबर में complete हो जाएगा, sir. बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। अब मुझे ये बताइए कि वाई आर यू चूज अ सी एस आर नेट instead of a civil services any other things? Sir, I wanted to, when I was small, I wanted to become a botany professor. It was my dream. ओके। So I wanted to write the CSR net exam for that. ओके ओके, तो आपका ख्वाब प्रोफेसर बनने का था तो अपने सीधा मतलब सी एस आर नेट के रास्ते से ही होके गुजरता है। तो ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि क्या कैसी जर्नी रही आपके सी एस आर नेट प्रिपरेशंस की, कैसे आप पढ़ाई करते थे, क्योंकि आपका मास्टर्स तो मतलब 2023 में कंप्लीट हो गया था। फिर उसके आगे की जर्नी कैसे रही, आप कैसे पढ़ते थे, क्या रूटीन होता था, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, रिवीजन कैसे किया? Yes, sir. After completion of masters in the year 2023, and I plan to take the classes from the IFAS because my friends were telling IFAS is a very good institute. It gives very good education. So I chose that. I took the subscription and I started with the preparation. And it was my third attempt. I cleared the CSI net exam. In the back two attempts, it was I qualified only PhD. So I wanted to clear it, and I used to attend the classes. I used to do revision. I used to attend the practice papers, and I used to attend the mock tests also. Okay. So how many units are you prepare for the CSR net? So I have prepared almost 12 units. I left the animal physiology unit. Okay. Yeah, I got it. Are you from the botany background? So that's why. Although I'm a botany background, but I had studied the animal physiology. In fact, I took the Pranshu sir classes and I made the notes, but I didn't get the time to revise the animal physiology. Okay. So you don't get the time to the revise. Okay. Yes. So मुझे ये बताओ कि कौन सी यूनिट जो है आपको इजी लगी और कौन सी यूनिट आपकी पसंदीदा यूनिट रही, इंटायर जो 12-13 यूनिट आपने प्रिपेयर करी थी? So my favorite units are biochemistry, KC Sarka, and cell biology, and molecular biology, and also dev biology by the Vishal sir. It was amazing, and plant physiology by Lalji sir, and almost ecology and evolution. These are my favorite units. Okay. So almost 8 units are the favorite one. Yes, sir. Okay, so which unit are you feel a complex, hard, or you when you try to solve the question, you don't solve the questions? It was methods in biology, sir. Okay. But in the अंतिम और आखिरी बार एंड ऑल जेआरएफ एक्सप्रेस में जो पुणे का सर थे ना लोकेश सर। उनका सर उसका वो बहुत अच्छे किए थे. ओके ओके, लोकेश सर ने आपको बहुत सही तरीके से सारे। बहुत अच्छे लगते थे मुझे जेआरएफ एक्सप्रेस एंड आई अटेंडेड ऑल द सीरीज जेआरएफ एक्सप्रेस अंतिम और आखिरी बार एंड ऑल दो सीरीज आई अटेंडेड. ओके, तो लोकेश सर ने जो आपको मेथड्स इन बायोलॉजी पढ़ाया वो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आया। यस सर. बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि व्हेन वी स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग फॉर द सीएसआर नेट, देन आफ्टर सम टाइम वी गेट demotivated, we feel exhausted, burnout, and the mind is almost saturated.
So Yes. how you tackle with such situation? हाँ, जब एग्जाम सामने होता तो रिवीजन कर करके थक जाती थी, तो फिर क्या करती थी उस टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी. Then I used to revise some notes, or I used to get walk, and फिर again in the morning I used to sit for afternoon, and again after question practice, and then I'll leave it, sir. ऐसे करती थी. और प्रांशु सर की मोटिवेशन की वीडियोस और केसी सर की मोटिवेशन की वीडियोस वो सब हेल्प की है मुझे. ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब. चलिए, अब जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, आगे आने वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी, क्या बताना चाहोगे, स्पेशली साउथ रीजन, क्योंकि वहाँ पे ऐसा मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि ज़्यादातर इंग्लिश का यूज़ होता है या लोकल लैंग्वेज का. तो उनके लिए क्या सलाह होगी आपकी? उनके लिए आईएफएस से तो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है. और हम साउथ वालन के लिए हिंदी टफ नहीं है. वी इट इज इजी फॉर अस, वी टॉक. हाँ हाँ हाँ. उनको आगे आने वाले एस्पिरेंट्स को मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप क्लासेस ले रहे हो तो हम्म, शिद्दत से क्लासेस को सुनो हम्म, और नोट्स बनाओ, और जितना हो सकता है प्रैक्टिस कर लो. एंड डोंट टेक इट ऑन योर सेल्फ कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है प्रैक्टिस भी करना है, कैसे एक दिन में सारा हो जाएगा. नहीं, आप क्लासेस में फुल अटेंशन से क्लास ले लो. फिर बाद में क्लास जब खत्म हो जाएगा तो इवनिंग में नोट्स बनाइए, और फिर थोड़ा सा 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए. बस इतना ही इज इनफ, सर. चलिए, बहुत बढ़िया. और मुझे ये बताइए कि ऐसी क्या 4 या 5 चीज़ें आपको लगी कि आपको लगता है कि यहाँ ये मैंने फॉलो की और इसी वजह से मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो. अगर मैं ये 5 चीज़ें, 3 चीज़ें, 4 चीज़ें फॉलो नहीं करती तो शायद मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता. सर, पहला कि आप फाइनलाइज करो आपको कौन कौन से यूनिट्स चाहिए, आप करना चाहते हो, आपके लिए इजी है उसको टैकल करो. चाहे वो 5 यूनिट्स हो, चाहे वो 8 यूनिट हो, आप उसको प्रिपेयर करके पहले आप उन 8 यूनिट को खत्म करो. 8 यूनिट होने के बाद रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो. Then you, after when you become perfect with all those 8 units, then move further units, which I want to tell you. Revision, practice is the main key, I feel, in this examination. बहुत बढ़िया. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस. विशिंग यू वेरी Sir, ऑल द बेस्ट. I want to thank K sir and Pranshu sir. Because of them, I cleared KSET, DBT JRF, and I cleared GATE, and now CSIR NET exam. ओके, बहुत बढ़िया. चलिए, थैंक यू सो मच वन सेकेंड. Thank you, sir. Thank you. Sir and Pranshu sir. Because of them, I cleared KSET, DBT JRF, and I cleared GATE, and now CSIR NET exam. ओके, बहुत बढ़िया. चलिए, थैंक यू सो मच वन सेकेंड. Thank you, sir. Thank you.